Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from previous year's SimCats, and set is a deductive reasoning based set. And set says, Coach Arora runs a sports academy where he trains athletes in 5 disciplines. Athletics A, badminton B, cricket C, dodgeball D, and esports E over a period of 10 months. Month 1 to month 10. In each month, the coach train exactly 3 disciplines. The combination of 3 disciplines chosen each month is always different. Each discipline is trained exactly 6 times across the 10 months. The number of athletes in discipline A, B, C, D, E are 10, 20, 30, 40, 50 respectively. Each athletes belong to only one discipline. The following facts are known. In 3 consecutive months, the total number of athletes trained formed a decreasing AP with a common difference of -20. The three total were divisible by 20. The total number of athletes trained in month 9 was less than month 8, which is in turn less than month 7. There is a gap of 4 months between the 2 months when he trained exactly 80 athletes. The month when he trained the maximum number of athletes were immediately after the month when he trained the minimum number of athletes. Also, the maximum was not in month 10. There is a gap of 3 months between the 2 months when he trained exactly 90 athletes. In 2 consecutive months, the total number of athletes trained were 100. Questions we पढ़ लेते for how many of the 10 months can we uniquely determine the total number of athletes trained by Coach Arora? In which month did Coach Arora train a total of 110 athletes? In which of the following month was the total number of athletes trained by Coach Arora 80? In which of the following month was total number of athletes trained by Coach Arora 90? क्या कह रहा है कि कोई कोच अरोड़ा है इज ट्रेनिंग इन 5 डिसिप्लिन और हर डिसिप्लिन को एग्जैक्टली 6 बार मेंटर कर रहा है या ट्रेन कर रहा है इन टोटल ही इज डूइंग फॉर 10 मंथ्स और हर 10 मंथ्स में उसका जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग आ रहा है तो यहाँ पे जब भी तुम्हें ऐसा सेट मिले तो तुम्हें क्या करना है एनसीआर का लॉजिक तुम्हें पता होना चाहिए एनसीआर बोले तो यहाँ पे क्या होने वाला है 5C3 का लॉजिक लगेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज 10 यानी कि हर बार कॉम्बिनेशन जो है वो एग्जैक्टली एक एक बार अगर बनाने पे जाऊंगा तो वो 10 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं और वही 10 महीने को अपने को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है ठीक है 10 कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा पहला कॉम्बिनेशन A B C A B D A B E A C D A C E A D E ठीक है B C D BCE PDE एंड CDE ये टोटल कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही 10 कॉम्बिनेशन है जो कि वो ट्रेन कर रहा है अब यहाँ पे ध्यान देना 2 हिंट पहली हिंट बोला था कि भाई वो द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिसिप्लिन चूजन ईच मंथ इज ऑलवेज डिफरेंट वो तो हमने देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली है एंड ईच डिसिप्लिन इज ट्रेंड एक्जैक्टली 6 टाइम तो यानी कि देखो ए 6 बार हुआ है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार सेम इज विद बी 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 सेम इज विद सी 1 2 3 4 5 6 सेम इज विद डी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार एंड सेम इज विद दी ई ठीक है अब ये जिस मंथ भी एबीसी को कर रहा है उनका जो टोटल सम बनेगा वो क्या बनेगा वो निकाल लेते हैं वो क्या बन सकता है अपना एबीसी का क्या बनेगा 10 20 और 30 यानी कि 60 बन जाएगा एबीडी का कितना बनेगा 10 20 और 40 यानी कि 70 बन जाएगा 10 20 और 50 यानी कि 80 बन जाएगा 10 30 और 40 यानी कि अगेन 80 बन जाएगा 10 30 और 50 यानी कि 90 बन जाएगा 10 40 और 50 यानी कि 100 बन जाएगा बीसीडी यानी कि 20 30 और 40 यानी कि 90 बन जाएगा बीसीई यानी कि 20 30 और 50 यानी कि 100 बन जाएगा बीडीई यानी कि 20 सॉरी 30 हाँ बीडी 20 40 और 50 यानी कि 110 बन जाएगा और सीडीई यानी कि कितना बन जाएगा 120 अब अपने को यही 6 ये जो पूरी 10 महीने की जो वैल्यूज हैं यही निकालनी यही 10 महीने की अपने को आइडेंटिफाई करनी है कि कौन से मंथ में कौन सी वैल्यू अपने को मैप होगी यूजिंग दी गिवन इन्फॉर्मेशन लेट्स स्टार्ट रीडिंग द इंफॉर्मेशन क्या बोला गया कह रहा है कि इन दी फर्स्ट
इन दी 3 कंसेक्यूटिव मंथ, किसी 3 महीने लगातार महीने में द टोटल नंबर ऑफ एथलीट ट्रेन्ड फॉर्म अ डिक्रीजिंग एपी विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ -20, द 3 टोटल वर डिविजिबल बाय 20। कह रहा है कि जो 3 मंथ थे, कोई 3 महीने लगातार में वहां पे जो एपी है वो -20 के एपी पे वो 3 मंथ लगातार आ रहे हैं, एंड वो जो तीनों महीनों का टोटल है वो 20 से डिविजिबल है। ठीक है, अब वो जो तीनों महीने की वैल्यू वो इन्हीं में से कहीं आनी चाहिए। ठीक, यानी कि अगर 60 से आती तो 60, 80, 100 हो सकता है, यानी कि एक पॉसिबिलिटी बन सकती है 60, 80 और 100 वाली। ठीक, -20 का एपी भी लग गया और 20 से डिविजिबल भी है। अच्छा, और क्या हो सकती है? 80 से जा सकती है, यानी कि 80, 100 और 120। ठीक, अच्छा, इसके अलावा कोई और वैल्यू हो सकती? नहीं, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि या तो वो -20 का एक वो नहीं बनेगा कॉमन डिफरेंस, या वो जो सम ऑफ टोटल है वो डिविजिबल 20 से नहीं हो रहा होगा। पॉइंट नंबर ए नोटेड। पॉइंट नंबर बी पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर बी कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स ट्रेन इन मंथ नंबर 9 वाज लेस देन मंथ 8, मंथ 7। ये पॉइंट यार अभी मेरे को कुछ मदद नहीं कर पाएगा। लेट्स रीड पॉइंट नंबर 2। देयर इज अ गैप ऑफ 4 मंथ बिटवीन 8 2 मंथ्स व्हेन ही ट्रेन्ड एग्जैक्टली 80 एथलीट्स। तो जो 80 उसने ट्रेन करे उनके बीच में 4 महीने का गैप होने वाला है। ठीक, अच्छा, यानी कि 80 ऐसा 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा 80 1 2 3 4 1 2 3 4। रुकते, थोड़ा और पढ़ते। देयर इज अ गैप ऑफ 4 मंथ, ये तो पॉइंट हमने नोट कर लिया। पॉइंट नंबर डी, देयर इज द मंथ व्हेन ही ट्रेन्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एथलीट्स वाज इमीडिएटली आफ्टर द मंथ व्हेन ही ट्रेन्ड मिनिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर क्या है वो मेरा 120, मिनिमम क्या है 60। यानी कि कह रहा है कि जिस दिन उसने जिस मंथ में उसने मैक्सिमम करा है वो मंथ कौन सा है? वो मिनिमम वाले के अगले महीना है, यानी कि ऐसा, यानी कि ये ऐसा होना चाहिए था। द मंथ व्हेन ही ट्रेन्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एथलीट वाज इमीडिएटली आफ्टर द मंथ व्हेन ही ट्रेन्ड मिनिमम नंबर। ठीक है, अभी देखो धीरे धीरे ये फॉर्म होना शुरू हो गया, 4 कंसेक्यूटिव डेज का मिल गया। ऑल्सो द मैक्सिमम मंथ वाज नॉट मंथ 10। जो वो मैक्सिमम वाला था वो मंथ 10 नहीं था। तो यार ये तो दिख रहा है कि मंथ 10 नहीं है, ये वाला शायद प्रॉब्लम बना सकता है। ठीक है, ये तो मंथ 10 नहीं बनना, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक, ऐसा हो सकता है कि ये केस मेरा एलिमिनेट हो जाए। ठीक, पॉइंट नंबर ई, देयर इज अ गैप ऑफ 3 मंथ बिटवीन द 2 मंथ व्हेन ही ट्रेन्ड 90 एथलीट्स। तो 90 के बीच में 3 का गैप होने वाला है ऐसा। इन 2 कंसेक्यूटिव मंथ द टोटल नंबर ऑफ एथलीट ट्रेन वाज 100। लगातार 2 महीने में इसने क्या करा? 100 एथलीट्स को ट्रेन करा। तो यानी कि 100 वाला लगातार यहाँ पे आ सकता है, पर यार ये यहाँ तो नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे यार 100 का नहीं आएगा, यानी कि यार ये वाला केस मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। अब ध्यान दो, मैंने जब वो वाला पॉइंट पढ़ा था उसके हिसाब से मेरे को लग रहा था कि यार ये केस तो सर्वाइव कर जाएगा, ये ना कहीं मतलब एलिमिनेट कर जाए। लेकिन मैंने उसको वहां पे एलिमिनेट नहीं करा, मैंने कहा चलो आगे देखते। बट अभी क्या हुआ, ये केस मेरा एलिमिनेट हो गया। तो यानी कि ये जो मेरा पूरा केस है ये मेरा गलत बना। ठीक, अच्छा, चलो इसके लिए जगह बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब मेरे पास जो अब बाकी जो बची हुई मेन पॉइंट है, जो मेन टिप है जो मेरे को मदद कर सकता है, वो था कि भाई 80-80 के बीच में मेरे को 4 का गैप देना है, 2 80 के बीच में, बिकॉज़ यही 80 एक मिला हुआ है, अब ये 80-80 के बीच में। अब 80 का गैप 4 दिन तक कहाँ पे हो सकता है? या तो आगे हो सकता है या तो पीछे हो सकता है, यानी कि ये 1, 2 ऐसा 3, 4, या तो ये आ सकता था कि यहाँ पे 80 आ जाए, या पॉसिबली दिस कुड हैव बीन इन दिस वे कि भाई 100, 100, 80, 60, 120 एंड देन 80, ऐसा। ये केस बन सकता था। तो अभी मेरे को दिख रहा है कि यार 80 1 2 3 4 का गैप और फिर 80 आ गया, यहाँ 80 1 2 3 4 का गैप ये भी आ गया, यानी कि पॉइंट ए, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी को यूज करने के बाद मेरे को ये थोड़ा सा बनते हुए दिख रहा है। ठीक, नाउ आई एम लेफ्ट विथ 2 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर एफ भी यूज है मेरा, तो एक मेरे को बी बाकी है जो कि कहता है मंथ 9 का लोअर होना पड़ेगा, और एक मेरे को बाकी है पॉइंट नंबर ई और पॉइंट नंबर डी का भी आधा बाकी, विच सेज कि मैक्सिमम वाला 10 मंथ में नहीं होगा, और पॉइंट नंबर ई बाकी विच सेज कि देयर इज अ गैप ऑफ 3 मंथ बिटवीन द 2 मंथ व्हेन ही ट्रेन 90 एथलीट्स, ये वाला पॉइंट। अब यार ये जो 90 वाला ये कहाँ पे एडजस्ट करा जाए, ये थोड़ा सोचते हैं। क्या मैं 90 को जो एक साथ एडजस्ट करना है, क्या मैं इसको आगे एडजस्ट कर सकता हूँ? मतलब 90 मतलब 1 2 3 4 5, ये कंसेक्यूटिव क्या है? ये 5 अलग एक साथ मंथ है। ठीक है,
ये ऐसा हो सकता था कि यार पांचों को मैं आगे एक साथ एडजस्ट कर दूं या पांचों को एक साथ पीछे एडजस्ट कर दूं। प्रॉब्लम क्या है पांचों को एक साथ एडजस्ट करने का आगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मंथ आ चुके हैं। 5 करूंगा तो इट विल एक्सीड दैट 10 मंथ वाला लॉजिक। तो मतलब ये जो 90 है ना ही आगे आएगा ना ही पीछे आएगा, ये जब भी आएगा इन्हीं में से कहीं यूज होके आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, इन पे जब भी यूज करूंगा तो वो कैसे कर सकता हूँ, वो ऐसा कर सकता हूँ कि 90 1 2 एक पॉसिबिलिटी, यानी कि ऐसा, या 90 1 2 3 यहाँ पे 90 आ जाए। अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 7 8 9 10 11, यानी कि ये वाला केस तो मेरा एलिमिनेट हो गया। पर ये वाला केस तो मेरा सरवाइव कर सकता है ना, क्योंकि एक ऐसा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दिख तो रहा है बन पा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे कि भाई वो जिस दिन मैक्सिमम करता है दैट कैन नॉट बी मंथ नंबर 10। अब यहाँ पे यार मंथ नंबर 10 पे मेरे को 120 की वैल्यू दिख रही है, यानी कि मेरा जो केस नंबर 1 है वो भी मेरा क्या है, एलिमिनेट होता हुआ मेरे को दिख रहा है, यानी कि आई कैन नॉट प्रोसीड विद केस नंबर 1। तो मेरे को केस नंबर 2 पे सोचना पड़ेगा। केस नंबर 2 का मतलब ये वाला, ठीक है, 100 वाला। अब इसमें भी मेरे को पता है कि यार केस नंबर 2 में 90 और 90 वाला जो है वो मैं आगे नहीं लगा सकता, मेरे को पीछे लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्यों नहीं लगा सकता, अगेन वही लॉजिक की मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ तो इधर ही दिख रहा है, अगर आगे करूंगा तो इट विल एक्सीड 10 मंथ्स। ठीक है, अब 90 कहाँ लग सकता था, यहाँ पे लग सकता था 90 1 2 3 और एक और गैप देके 90, या यहाँ पे लग सकता था 90 1 2 3 90, ऐसा बन सकता था। अब इस केस में कितना होता, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक आ जाता 6 7 8 9 10 11, यार ये क्या बन रहे हैं अपने 11 मंथ बनते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ये वाला केस मेरा गलत है। तो मेरे को क्या केस लेना पड़ेगा, ये वाला केस लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ मिल गया मेरा, चलो ये देखो ये मेरा फर्स्ट मंथ मिल गया, दिस इज माई सेकेंड मंथ, ये मेरा थर्ड मंथ, दिस इज माई फोर्थ मंथ, दिस इज गोइंग टू माई फिफ्थ सिक्स, ठीक है, सेवेंथ की वैल्यू निकालना बाकी है, दिस इज गोइंग टू बी माई 8 मंथ, ये मेरा 9th की निकालना बाकी है, दिस इज माई 10th, यानी कि ये मेरा केस है जो मेरा परफेक्ट बन गया। अब अभी भी लेकिन यहाँ पे ये सेट खत्म नहीं हुआ, मेरे को अभी भी ये दो वैल्यू निकालना बाकी है। अब ये दो वैल्यू कैसे निकलेंगी, ये वैल्यू निकलेंगी, ये जो मैंने यहाँ शुरुआत में मेहनत करी थी वहां से निकलेंगी। मेरे को क्या निकालना था, 60 आई आइडेंटिफाइड, मेरे को 70 अभी नहीं मिला, मेरे को दोनों 100 मिल चुके हैं, मेरे को 120 मिल चुका है, ठीक है, दोनों 100 मिल चुके हैं, मेरे को दोनों 90 मिल चुके हैं, मेरे को दोनों 80 मिल चुके हैं। सो आई एम लेफ्ट विथ 70 एंड 110। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जिसको मैंने अभी तक यूज नहीं किया, पॉइंट नंबर बी विच सेज द नंबर ऑफ एथलीट ट्रेन्ड इन मंथ 9 वाज लेस देन मंथ 8 व्हिच इज इन टर्न लेस देन मंथ 7, यानी कि मंथ नंबर 7 पे क्या आएगा, यहाँ पे आना चाहिए मेरा 110 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 70। इस तरीके से ये मेरा पूरा वैल्यू यहाँ पे बन जाएगा। इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख देते हैं नीचे करके, तो ये क्या बन जाएगा ऐसा, 100 80 60 120 90 110 80 70 एंड 90। ठीक है, बस यही अपने को सॉल्यूशन में पूरा क्रिएट करना था। नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन, देखिए क्या बोला, फॉर हाउ मेनी 10 मंथ्स कैन वी यूनिकली डिटरमाइन। यार ये तो 10 दिन का कर पा रहे हैं, ये जो 10 के 10 महीने पूरे कर पा रहे हैं। फॉर ऑल द 10 वैल्यूज वी कैन यूनिकली डिटरमाइन, ठीक है। इन विच मंथ डिड कोच अरोड़ा ट्रेन 110, 110 मतलब यहाँ पे कौन सा मंथ है, मंथ नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मंथ नंबर 7 था जहाँ पे अरोड़ा साहब ने 110 को करा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ वाज द टोटल नंबर ऑफ मंथ व्हेन ही ट्रेन्ड 80, यानी कि 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 और 8, यानी कि मंथ नंबर 3 एंड मंथ नंबर 8, ठीक है। 90 कब करा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि मंथ 6 एंड मंथ 10, ठीक है।
सो आई वुड रेट इज एज अ मॉडरेट सेट, मतलब ऐसा एक सिमिलर सेट आपको 23 वाली प्लेलिस्ट में भी दिखेगा। एंड अगर आपने वो कर रखा है, बट अगर दिस इज मतलब आपने वो ट्राई नहीं करा तो ऑब्वियसली ये आपके लिए नया सेट है लर्निंग के लिए। एंड दैट्स इट, कीप प्रैक्टिसिंग।